Pran Pratishtha in Ayodhya this year and the inauguration of the Swaminarayan Mandir in Abu Dhabi, the largest Hindu temple in the Middle East. Today, the Prime Minister is all set to visit Sambal in Uttar Pradesh. The Prime Minister will take part in the foundation stone laying ceremony of a Hindu temple that will be constructed in Kalki Dham. Now, this is the first and only temple in India to be constructed for Lord Kalki, who is an incarnation of the Hindu god Vishnu, whose incarnation is expected in the Kali Yuga as per Hindu scriptures. Now, the Prime Minister is expected to arrive at around 10:25 a.m. this morning at Kalki Dham in Sambal and will be received by top dignitaries including the UP Chief Minister Yogi Adityanath. The Prime Minister then will visit the Sanctum Sanctorum and perform a parikrama in the south-north direction before he lays the foundation stone and performs the puja for the Pradhanshila in a 10-minute window. Now, the Prime Minister will also inspect a model of the Kalki Dham before he addresses devotees and dignitaries at the venue. Here's how the administration is preparing for the Mega Mandir launch event. There is a foundation stone laying program of Shri Kalki Dham at this place, and Honorable Prime Minister and Honorable Chief Minister are expected to come. All the security arrangements have been put in place. Sufficient number of police personnel and magistrates have been deployed. Since quite some number of people will also be expected to come here, so sufficient arrangements for their arrival, for their parking of vehicles, for their safe seating, their drinking water, toilets, all these facilities have been created. We are expecting a good number of people to come here, and we have made sufficient arrangements for them. As of now, the exact number, it is very difficult to say, but we have made arrangements for around 15 to 20,000 people in the place, in the venue. Now, ahead of his arrival, the excitement is hitting a fever pitch in Sambal. Let's take you straight through the venue where the Prime Minister will perform the puja before he addresses the devotees. Well, Times Now brings to you the special report from Sambal in Uttar Pradesh, where the preparations are going on in full swing for the historic and iconic event that is the laying of foundation stone of Kalki Temple by the Prime Minister on February 19. Now, behind me you can see that is the Garbhagriha where the foundation stones have been kept. At 10:25, Prime Minister is going to land in Sambal, and after that he will be doing puja of the foundation stones along with the UP Chief Minister Yogi Adityanath. On my left hand side also you can see that is where the Prime Minister will address the public, devotees, dignitaries, VVIPs and the political leaders who will be coming to Sambal for this grand event that is going to take place after Ram Mandir Pran Pratishtha, the inauguration of a temple in UAE. This is the third temple visit of the Prime Minister in the last few weeks, in fact. So this is the area where the Prime Minister will be arriving. It will be built on 5 acres land. It will take 5 years. So approximately the construction of the temple will be completed by 2029 is what the officials have been saying. And it will be made from the same sandstone, the pink color sandstone from which the Ram Mandir and also Somnath temple have been made. So this is how the temple is going to look like. This temple is of Lord Kalki, the 10th and the final incarnation of Lord Vishnu, and the first temple in the country, in fact, which is being in fact built before the incarnation of Lord Kalki. So that is why this holds a lot of importance politically, religiously. Prime Minister is going to be here addressing the public, dignitaries along with UP Chief Minister. He's going to be here behind me, Garbhagriha, where he will be doing the puja of the foundation stones. In Sambal with video journalist R.K. Yadav, this is Akanksha Khajuria for Times Now. Now, viewers, let's talk about this particular temple. The Kalki Dham Bhavan will be spread across 5 acres and will take about 4.5 to 5 years to be completed. The shikhars of the temple, or the domes, will be about 108 feet tall, and the base of the temple will be 11 feet high. Now, what this mandir will be constructed using is the Rajasthan's pink stone. Interestingly, this is the same stone which was used in the construction of Ram Mandir in Ayodhya, and also the Somnath temple which was constructed. Now, to know more, Times Now also spoke to the chairman of Kalki Dham Nirman Trust, Acharya Pramod Krishnam. Let's listen in to what he has to say about the temple. कितना अहम ये दिन रहेगा? ये सनातन के गौरव का विषय है।
भारत के लिए अद्भुत पल है। भगवान के होने वाले अवतार का धाम और उसकी आधारशिला रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। श्री कल्कि अवतार, पुराणों में ये लिखा है कि कलयुग में भगवान श्री कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। तो जहां भगवान अवतार लेंगे उस धरती पर ही उनके अवतार से पहले भगवान का धाम बन रहा है और उस धाम की आधारशिला रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और उस शिलान्यास समारोह की सफलता के लिए और भविष्य के विषय में जो शब्दों का प्रयोग करते हुए जिन भावनाओं की अभिव्यक्ति भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा भेजे गए पत्र में हो रही है, उससे मैं बड़ा आनंदित हूँ। पूरा संत समाज गौरवान्वित है कि इस देश को एक ऐसी राष्ट्रपति मिली है जो देश के जनमानस की भावनाओं का सम्मान करती हैं और एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो इस देश को, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में चल दिया है। सर, हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये 3D मॉडल है जो मंदिर बनने वाला है। कितने सालों में ये मंदिर बनेगा, कितने एकड़ लैंड में ये बनेगा और क्या कुछ इसकी खासियत रहेगी? श्री कल्कि धाम का जो भवन है वो लगभग 5 एकड़ में बन करके तैयार होगा और इसको बनाने की जो अवधि बताई गई है वो लगभग 4.5 साल से 5 साल है। ये राजस्थान के गुलाबी पत्थर से निर्मित होगा, जिस पत्थर से सोमनाथ का मंदिर बना है, जिस पत्थर से भगवान श्री राम की जन्मभूमि का मंदिर बना है। इसका जो शिखर होगा वो 108 फीट ऊंचा होगा। ये जो शिखर है ये 108 फीट ऊंचा होगा और इसका जो ये चबूतरा है, जो इसका बेस है, ये 11 फीट ऊंचा होगा। इसके मध्य में शिवलिंग स्थापित होगा, क्योंकि पुराणों में ऐसा लिखा है कि भगवान जहां आएंगे उस स्थान को संभल के नाम से जाना जाएगा। और ये जो संभल है, ये पुराणों में इसको शंभल कहा गया है। शंभल, शंभल शंभू से बना है, शंभलेश्वर महादेव, शंभल से शंभल। तो ये जो मुगलिया पीरियड आया, जब हमारे देश पे विदेशी हुक्मरानों ने हुकूमत की, तो शंभल से इसको संभल कर दिया गया। पुराणों में यह भी लिखा है कि इस स्थान को सतयुग में सतव्रत के नाम से जाना जाएगा। त्रेता युग जब आएगा तो इसको महदगिरी के नाम से जाना जाएगा। फिर द्वापर युग में इसको पिंगल द्वीप के नाम से जानेंगे और जब कलयुग आएगा तो इसको संभल के नाम से जाना जाएगा। इसी संभल में भगवान का अंतिम अवतार, 10वां अवतार, जिसे हम निष्कलंक अवतार भी कहेंगे, श्री कल्कि अवतार, इसी संभल नामक स्थान पर 24 कोस की परिधि में अवतार लेगा। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है जिसमें ये मेंशन है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो जिस संभल में भगवान आएगा, ऐसा पुराणों में लिखा है, उनके अवतार से पहले ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है जो भगवान के अवतार से पहले स्थापित हो रहा है। और सर, हम देख रहे हैं कि काफी डेवोटीज यहाँ पे ऑलरेडी आ गए हैं, पर विपक्ष की तरफ से अटैक किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूएई में इनॉग्रेशन, टेम्पल के इनॉग्रेशन के बाद ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर को इंडिया की तरफ देखना चाहिए कि यहाँ किस तरह मदरसों और मस्जिद है उनको तोड़ा जा रहा है, फिर भी ये सब चीजें हो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई मदरसा तोड़ा जा रहा है, कोई मंदिर तोड़ा जा रहा है, कोई मस्जिद तोड़ी जा रही है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में न्यायपालिका है, भारत में सरकार है। मुझे तो लगता नहीं। हाँ, अगर कोई गलत काम करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की सरकार, भारत की व्यवस्था कोई भेदभाव करती है। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह हो रहा है, माननीय मोदी जी आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री अपने हाथों से, कर कमलों से इसकी आधारशिला रखेंगे। करोड़ों लोगों को प्रतीक्षा है, मोदी जी क्या बोलेंगे। सर, आपसे आखिरी क्वेश्चन, थोड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए, कितने बजे मोदी जी यहाँ आएंगे और किस तरह से जो शिलान्यास किया जाएगा उसके बाद? श्री कल्कि धाम के गर्भगृह में 9 शिलाओं को स्थापित किया जाएगा। उन 9 शिलाओं में एक शिला जो होगी मध्य की शिला, जिसे हम कूर्म शिला कहते हैं, आधार शिला, उसको माननीय मोदी जी अपने कर कमलों से स्थापित करेंगे। 10:25 पर उनके यहाँ पधारने का कार्यक्रम है और 1 घंटा वो यहाँ रहेंगे। आधारशिला रखने के बाद जब वो
आएंगे तो उनका स्वागत 108 शंख ध्वनि से किया जाएगा। गुरुकुल की कन्याएं उनका स्वागत करेंगी शंख ध्वनि से। उसके बाद वो मंच पे आएंगे और देश को संबोधित करेंगे। 1 घंटे तक उनके यहाँ रहने का कार्यक्रम है। जो शिलाओं का पूजन होगा, उनका गुप्त पूजन 3 दिन से चल रहा था। वो शिलाएं आज यहाँ से कल की पीठ में रखी हुई थीं, आज वो यहाँ से प्रस्थान कर रही हैं कल्की धाम के लिए। तो जैसे घर में एक महान उत्सव होता है, उन शिलाओं का पूजन उस तरह से हो रहा है जैसे कन्याओं का पूजन होता है। श्री कल्की पीठ में जब वो शिला आई तो सिर पे रख के उतारी गई। अब वो शिलाओं को सर पे रख के वहाँ ले जाया जा रहा है। श्री कल्की पीठ से शिलाएं प्रस्थान करेंगी, श्री कल्की धाम के गर्भगृह तक पहुंचेंगी। उनका विधि विधान से पूजन चलेगा और फिर श्री कल्की धाम के गर्भगृह की स्थापना की घोषणा हो जाएगी। और हम टेंपल अगले 5 सालों में 2029 तक देख पाए। मुझे लगता है कि 4.5 से 5 साल का समय लगेगा, पर सबकी प्रार्थना ये है, करोड़ों आंखें हैं जो कल्की धाम को बनता हुआ देखना चाहती हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं सनातन के कोने कोने में, पूरी दुनिया से मैसेज आ रहे हैं कि भगवान जहां आया, भगवान त्रेता में अयोध्या में आए, उनके सारे काम मोदी जी ने अपने हाथों से किए और जहां भगवान आएगा उनका काज करने के लिए भी नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आपसे बात करने धन्यवाद। सो दिस वाज आचार्य प्रमोद कृष्णन स्पीकिंग ऑन टाइम्स नाउ रिगार्डिंग द फाउंडेशन लेइंग सेरेमनी। Now, viewers, ahead of the foundation stone laying event, Times Now also visited the Kalki Dham site and got a glimpse of the foundation stones that will be part of the puja when the Prime Minister arrives. In fact, the Prime Minister will offer his puja to the Pradhan Shila, one of the 9 Shilas or the foundation stones that will be part of this ceremony. Here's another ground report by Akanksha. Prime Minister will lay a foundation stone at Kalki Temple here in Sambal in Uttar Pradesh. This temple will be dedicated to Lord Kalki, who's the 10th and final incarnation of Lord Vishnu, who will arrive, and that is when the Kali Yuga will end. As far as the foundation stones are concerned, Times Now is bringing you the first look of the foundation stone on February 19th. Prime Minister along with the UP Chief Minister is going to do the पूजन ऑफ दीज फाउंडेशन स्टोन। सर, इन फाउंडेशन स्टोन शिलाओं के बारे में कुछ बताइए, कहाँ इनको रखा जाएगा और किस तरह इनकी पूजा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाएगी? ये प्रधान शिलाएं हैं, ये 9 शिलाएं हैं, 9 शिलाएं हैं, जिनमें से जो मध्य वाली जो शिला है कूर्म शिला, ये प्रधान शिला है, जिसका पूजन माननीय श्री प्रधानमंत्री जी के द्वारा कराया जाएगा। सभी वेदज्ञ ब्राह्मण यहाँ जो उपस्थित हुए हैं, जिनको यत्र तत्र से जिनको बुलाया गया है, उनके द्वारा ये विधिवत पूजन कराया जाएगा। ये जो 9 शिलाएं यहाँ रखी हुई हैं, मैं इनके विषय में आपको बता देता हूँ। प्रथम जो पहली शिला उधर रखी हुई है, ये पाश है, इनका नाम पाश है। द्वितीय जो शिला है ये गदा है, और तृतीय जो शिला है ये वज्र है। चतुर्थ जो शिला है ये अंकुश है। पंचम जो मध्य वाली शिला है, जिनके विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, ये प्रधान शिला है, कूर्म शिला। इसमें भगवान नारायण के सहित माँ पृथ्वी, इन सभी का पूजन किया जाता है, भगवान वास्तु का पूजन किया जाता है। इधर जो शिला है, यहाँ ये त्रिशूल है, उसके बाद दंड, फिर खड्ग, और उसके बाद जो अंतिम है वो है खंड। ये 9 शिलाओं के नाम हैं। अच्छा, बीच वाले जो फाउंडेशन स्टोन है, इसकी पूजा की जाएगी प्रधानमंत्री के द्वारा? हाँ, विशेष वैसे तो ये सारी शिलाओं का पूजन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारी प्रधान शिला है उसका पूजन संक्षेप में कराया जाएगा। जो पूजन है उसका समय जो निर्धारित है वो 7:30 बजे है, और उसके लिए एक हम यजमान बनाएंगे जो प्रतिनिधि के रूप में होंगे, क्योंकि पूजन में काफी समय लगता है। इतना समय प्रधानमंत्री जी नहीं दे सकते। उनका एक समय निर्धारित है जो हमको मिलेगा 9 से 10 मिनट, इससे ज्यादा का समय वो नहीं दे पाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो एक संक्षेप में पूजन संकल्प इत्यादि उनके द्वारा करा करके मध्य शिला का पूजन कराया जाएगा। हमारे जो अभी भगवान के अवतार हैं वो शास्त्रोक्त 24 अवतार माने गए हैं। 24 अवतारों में ये भगवान का 24वां अवतार है।
24वां अवतार है ये, 24वां अवतार है। 24वां अवतार भगवान कल्कि का है, जो कलयुग समापन होने से लगभग 700 वर्ष पूर्व जो पुराणों के अंदर इसका वर्णन किया गया है। संभल नामक ग्रामस्य ब्राह्मणे विष्णु यशः कलिक देवो प्रादुर्भविष्यति। कलयुग में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर भगवान कल्कि का अवतार लगभग कलयुग समापन होने से 700 वर्ष पूर्व होगा, ऐसा श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद के 2य अध्याय के अंदर इसका वर्णन करते हैं। भागवत जी बोलते हैं, Now, viewers, ahead of the foundation laying ceremony, the political significance of the Prime Minister's visit in the run-up to the 2024 cannot be ignored. The Kalki Dham is situated in the Ankora Kambo area of Sambal district. Like we said earlier, the Kalki Dham is headed by Pitadishwar Acharya Pramod Krishnam, who only last week was expelled by the Congress party. Now, this will be Narendra Modi's first visit to the district as the Prime Minister, which is also significant as it's known to have a sizable Muslim population as well. The BJP lost all 5 seats in this region in the 2019 Lok Sabha polls to the SP-BSP alliance, and also lost 4 out of 5 seats in the Sambal area as well in 2022 assembly elections, and hence this visit could also give some impetus to BJP's 400 Par mission. With that, viewers,